کراچی میں بدامنی کی لہر، سیکیورٹی فورسز نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا، شہر کے مختلف علاقوں میں تابڑ توڑ کارروائیاں۔ اہل سنت والجماعت کے رہنما تاج محمد حنفی اور مجلس وحدت المسلمین کے مرزا یوسف حسین سمیت 40 سے زائد افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی کے خلاف غیر قانونی SMG رکھنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عدالت نے 19 نومبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں اور ان کے منصوبہ سازوں پر شکنجہ سخت، کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج حملہ اور سول اسپتال دھماکے کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، کمپیوٹر بارودی مواد برآمد، مستونگ اور مشت سے بھی 6 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ رینجرز نے سوشل میڈیا پر جاری تصاویر کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ ایسی تصاویر کا مقصد آپریشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ مساجد، امام بارگاہ اور مدارس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ترجمان کی وضاحت۔ گڈانی میں بحری جہاز کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن اموات کا سلسلہ نہ رک سکا، جھلسنے والے مزید 3 مزدور زندگی کی بازی ہار گئے۔ حکومت اور اسپتال انتظامیہ کی بے حسی پر لواحقین کا لاش RCD شاہراہ پر رکھ کر احتجاج۔ سانحہ گڈانی کیسے پیش آیا؟ رپورٹ سامنے آ گئی۔ جہاز پر تیل تھا جسے صاف کیے بغیر کٹائی شروع کر دی گئی۔ جہاز کا مالک، کمپنی مینیجر اور 2 ٹھیکیدار ذمہ دار قرار دے دیے گئے۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ارسال کر دی گئی۔ سی پیک پر اعتراضات کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد قیصر کا کل پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ، عدالت سے مغربی روٹ پر حکومت سے وضاحت طلب کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ سی پیک منصوبے میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ منصوبے کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ عدالت جانے والے بتائیں کہ وہ کس کے ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں۔ احسن اقبال اور امیر مقام کا رد عمل۔ وفاقی حکومت سی پیک کو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع بنانے پر تلی ہے۔ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق مغربی روٹ پر کام کرایا جائے، سراج الحق کا مطالبہ۔ قوم تخریبی سیاست کرنے والوں کے عزائم پہچان چکی ہے۔ دھرنا پارٹی کی ترقی روکنے کی سازش کو عوام نے ناکام بنا دیا۔ شہباز شریف کی مخالفین پر کڑی تنقید۔ پرویز رشید بے قصور تھے تو وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ پرویز الہی کا سوال۔ حکومت مدت پوری کرے گی، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے پیش گوئی کر دی۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کی تربیت ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ بھارتی سفارتکار کل عدم تحریک طالبان سے رابطے میں تھے۔ ان کی سرگرمیاں پاکستان کے لیے خطرہ تھیں۔ سفارتکار اگر خود واپس نہ گئے تو انہیں نکال دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو۔ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا، کنٹرول لائن کے بٹل اور مدارپور سیکٹر پر فائرنگ اور گولہ باری سے 5 پاکستانی زخمی، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ کشمیری عوام صرف آزادی چاہتے ہیں، یاسین ملک سمیت تمام حریت رہنماؤں کو رہا کیا جائے، وشال ملک کا مطالبہ۔ سوات کے علاقے منگلور میں دہشت گردوں کے ہاتھوں تباہ کیے گئے گرلز اسکول کی عمارت 8 برس بعد بھی تعمیر نہیں ہو سکی۔ سرد موسم میں طالبات زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔
کشمالہ طارق نے فوٹوگرافی شروع کر دی۔ کراچی میں سوئمنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں فوٹوگرافر نہ آیا تو کشمالہ نے خود ہی کیمرہ اٹھا لیا۔ سرد موسم میں غریب کے لیے تن ڈھانپنا مشکل ہو گیا۔ لنڈا بازار میں بھی گرم ملبوسات کی قیمتوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ نارمل مارکیٹ میں چلے جائیں تو ہمیں 500-600 کا ملے گا، وہی لنڈے میں ہمیں مل رہے 500-600 کا، تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے لنڈے کا۔ ریٹ تو ان کے بھی اسی حساب سے ان کا بھی ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس کا بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا ہمارے ملک۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بھارتی سفارتکاروں کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کی تفصیلات بتائی ہیں۔ طارق فاطمی نے آج نیوز کے پروگرام روبرو میں خصوصی گفتگو کی ہے اور بتایا کہ بھارتی سفارتکاروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ طارق فاطمی نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ان سفارتکاروں کی سرگرمیاں پاکستان کے لیے خطرہ تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی سفارتکاروں کے دہشت گردوں اور کالعدم TTP سے رابطے تھے۔ طارق فاطمی نے مزید بتایا کہ یہ سفارتکار جلد بھارت چلے جائیں گے اور اگر یہ لوگ خود سے واپس نہ گئے تو پھر انہیں ناپسندیدہ شخص قرار دے کر واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ طارق فاطمی نے آج نیوز کے پروگرام روبرو میں خصوصی گفتگو کی ہے، ان کا کیا کچھ کہنا تھا، ملاحظہ کیجئے۔ یعنی کتنا گورنمنٹ آف پاکستان مزید وقت دے سکتی ہے تاکہ انڈین گورنمنٹ یا ان کو خود بلا لے یا پھر آپ PNG کر دیں؟ یہ اس چیز کا آپ کو یقین ہونا چاہیے اور آپ کے ویورز کو کہ ان سارے ایشو کو جو کنسرن ہماری آرگنائزیشن سے فارن منسٹری اور ریلیٹڈ آرگنائزیشن بڑی کلوزلی سے مانیٹر کر رہی ہیں اور ہر قسم کی سٹیپس لی جا رہی ہے جو لینی چاہیے۔ یعنی فرملی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بھارت نے ان کو واپس نہیں بلایا تو حکومت پاکستان ان کو غیر پسندیدہ قرار دے دے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے نا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بات کی ہے ان سفارتکاروں کی جن کی سرگرمیاں پاکستان کے لیے خطرہ تھیں۔ انہوں نے ان سفارتکاروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے دہشت گردوں اور اسپیشلی کالعدم TTP سے رابطے تھے۔ طارق فاطمی نے یہ بھی بتایا آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ سفارتکار جلد ہی بھارت چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ سفارتکار خود سے بھارت نہیں جاتے تو ان لوگوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر واپس بھیجوا دیا جائے گا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اور ناظرین اب رخ کریں گے کراچی کا، جہاں فرقہ وارانہ قتل و غارت کی نئی لہر نے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جی ہاں بالکل، کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی حالیہ لہر کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ علامہ مرزا یوسف حسین اور تاج محمد حنفی سمیت 40 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے وقاص خان۔ کراچی میں امن آنے کے بعد دہشت گردی پھر سر اٹھانے لگی۔ 15 روز میں 13 افراد ٹارگٹ کلنگ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ کراچی پولیس چیف مشتاق مہر نے اسے فرقہ وارانہ کلنگ قرار دیا۔ بالکل فرقہ وارانہ ہے، لیکن اس کو ہم کسی جو آج کل انٹرنیشنل ماحول ہے کسی تھرڈ فورس کو یا چینل 2 کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ کلنگ میں ملوث افراد ٹریس ہو گئے ہیں۔ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کی نشاندہی ضرور ہوئی ہے اور کچھ کلوز ملے تو جب ان کے فیسیلیٹیٹرز کو یا فائنانسرز کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے پتہ چلے گا کہ ایکچوئل شوٹر یا ایکچوئل جو ہے نا یہ کس نے پلاننگ کی تھی، اس کے ذریعے ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ دہشت گردوں نے سر اٹھایا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حرکت میں آئے۔ تابڑ توڑ کارروائیاں شروع ہوئیں۔ اتوار کو اس میں مزید تیزی آئی اور 40 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فیصل رضا عابدی سمیت 4 افراد کی گرفتاری سے اہم معلومات حاصل کی گئیں، جن کی بنا پر مزید گرفتاریوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ اتوار کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہل سنت والجماعت کے مولانا تاج محمد حنفی کو لیاری سے حراست میں لے لیا۔ ناظم آباد سے وحدت المسلمین کے رہنما علامہ مرزا یوسف حسین کو گرفتار کیا گیا۔ الصبح رضویہ میں رینجرز نے سرچ آپریشن کے دوران 3 افراد کو حراست میں لے کر
उनके कब्जे से 2 टीटी पिस्टल और रिपीटर गन बरामद कर ली गई। इधर नागन चौरंगी पर सिद्दीक अकबर मस्जिद के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न आई। समान टाउन, औरंगी, अब्बास टाउन और गोदरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि बल्दिया टाउन में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब पटेल पाड़ा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल का नाम यूनुस था और उसकी सोल्जर बाजार में निम्को शॉप थी। उधर कराची पुलिस ने फैसल रजा आब्दी के खिलाफ गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदालत ने फैसल रजा आब्दी को 19 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। सैयद ज़ीशान अहमद रिपोर्ट करेंगे। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब न्यू रिजविया सोसाइटी से गिरफ्तार साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सच्चल थाने में दर्ज FIR के मुताबिक छापे के दौरान फैसल रजा आब्दी के घर से 5 हथियार बरामद हुए, 4 के लाइसेंस पेश किए गए, जबकि 1 SMG गैर कानूनी है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मुलजिम को लेकर मलीर कोर्ट पहुंची। अदालत को बताया कि मुलजिम से गैर कानूनी SMG बरामद हुई है, रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 19 नवंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, कराची में हालिया टारगेट किलिंग की इस लहर को कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयों में मजीद तेजी ले आए हैं। मजहबी जमातों के अहम रहनुमाओं समेत 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। शहर में जारी ऑपरेशन ही के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सब कराची शहर की, क्या बताएंगे आप? पुलिस ने जो है गुज़िश्ता शब जो है वो छापामार कार्रवाई को आगाज़ किया था और शहर के मुख्तलिफ मुकामात, ख़ास तौर पर अब्बास टाउन, अंचोली, न्यू रिजविया सोसाइटी समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो छापे मारे थे और वहाँ से मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया था। और पुलिस इसी तरह जो है वो पुलिस की दूसरी नफरी ने जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार कर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के जो DIG है मुश्ताक महर, उनका ये कहना है कि ये फ़िरका वाराना जो टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों मजहबी जमातों और की पार्टियों को जो है वो गिरफ्तारियां जो है वो अमल जारी है। और उसके साथ फैसल रजा आब्दी जो साबिक सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके पास से जो है वो गैर कानूनी जो है वो असला बरामद हुआ है, जिसपे उनका जो है सिटी कोर्ट मलीर में उनको पेश किया गया है और 19 नवंबर तक जो है वो उनको रिमांड पर जो है में जारी ऑपरेशन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम हैदर। आपका बहुत शुक्रिया। अब जिक्र होगा तर्जुमान रेंजर्स का, जिनका कहना है कि सोशल मीडिया पर शरपसंद अनासर की जानिब से जारी तस्वीर हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ऐसी तस्वीर का मकसद ऑपरेशन की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। तलाशी में मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों का एहतराम किया जाता है। दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। शरपसंदों ने की मजमूम कार्रवाई और इदारों पर मजहबी मकामात की बेहुरमती का इल्जाम लगा डाला। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने शरपसंदों की मीडिया दहशतगर्दी का भी फौरी जवाब दिया और तलाशी के दौरान अहलकारों के रवैये की तस्वीर जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक शरपसंद अनासिर की मौजूदगी की इत्तला पर दौरान तलाशी मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस का एहतराम मलहूज़ खातिर रखा जाता है। रेंजर तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर को हक़ाइक़ के क़तई मनाफी करार दिया और कहा इन तस्वीर का मकसद ऑपरेशन की राह में रुकावट डालना है। रेंजर्स ने आवाम से अपील की कि वो किसी भी गुमराह कुन प्रोपेगंडे में ना आए और शरपसंद अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स का साथ दें। और नाज़रीन, कराची के बाद रुख करेंगे क्वेटा का, जहां सिक्योरिटी इदारों को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। क्वेटा में फोर्सेस ने क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और सिविल अस्पताल धमाकों का मास्टरमाइंड पकड़ लिया। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, कंप्यूटर्स, बारूदी मवाद, फौजी वर्दी और जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ है। हसास इदारे और एंटी टेररिज्म फोर्स की क्वेटा में कार्रवाई। एयरपोर्ट रोड से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और सिविल अस्पताल धमाकों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया।
कलअदम तंजीम के गिरफ्तार कमांडर से असलहा, कंप्यूटर्स, बारूदी मवाद, फौजी वर्दी और जिहादी लिटरेचर बरामद किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला थी कि कुछ दहशतगर्द क्वेटा में मौजूद हैं जो फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाना चाहते हैं। पकड़े गए दहशतगर्द का नाम सीगा राज में रखा जा रहा है, जिसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब दीगर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले में 60 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि 8 अगस्त के सिविल अस्पताल में होने वाले खुदकुश धमाके में 70 के करीब हलाकतें हुई। कोयटा में 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात में 136 अफराद लुक़मा अजल बने। हमलों में 270 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। माजी में लिटिल पेरिस कहलाने वाला शहर क्वेटा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। 8 अगस्त को दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान बार काउंसिल के सदर अनवर कासी को निशाना बनाया। अनवर कासी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो जाँ बहक हो गए। अनवर कासी की लिहाज से पहले ही मुकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच चुकी थी। यही वो मौका था जब दहशतगर्द ने खुद कुछ हमला किया। धमाके में 75 अफराद शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। आज न्यूज के कैमरामैन शहजाद खान भी सहाफती जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सानेहा सिविल अस्पताल का गम अभी कम न हुआ था कि दहशतगर्दों ने दरिंदगी का एक और मंसूबा तैयार किया। 24 अक्टूबर की रात 3 दहशतगर्द क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुए। दहशतगर्द खून की होली खेलते रहे जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची। दहशतगर्द बड़ी तादाद में एहलकारों का खून बहा चुके थे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खुदकुश हमले में 61 जेर तरबियत एहलकार शहीद और 120 से ज्यादा जख्मी हुए। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सानिया सिविल अस्पताल और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा में हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद। मुजीब अहमद, ये अहम गिरफ्तारी अमल में आई है, अहम दहशतगर्द पकड़ा गया है, क्या तहकीकात में कोई अहम पेशरफ्त हुई है इसके बाद? असासिदारों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब एयरपोर्ट रोड पे आज उन्होंने कार्रवाई की और दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। ये शख्स एक कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखता है और सानिया कोयटा जो पहले रूनुमा हुआ 8 अगस्त को सिविल हॉस्पिटल कोयटा में, जिसमें 75 अफराद शहीद हो गए थे, उसके लिए और फिर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले के लिए इसने मंसूबाबंदी की थी और सहूलतकारों दहशतगर्दों को अरेंज किया था। अब भी चंद दिनों से थ्रेट थी कि दहशतगर्द यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर ये ऑपरेशन अमल में आया। हसास इदारों और ATF ने एक किया और इससे अब नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। इसके जरिए मालूम होगा कि मजीद कितने लोग हैं जो इसका साथ दे रहे थे और वो बॉम्बर्स जिनके बारे में कि वो कोयटा में मौजूद हैं उन्हें भी रात किसी वक्त तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मस्तुंग में कार्रवाई की गई है और कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को असले समेत हिरासत में लिया गया है। इसी तरह मश से भी 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है जो टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहे। बहुत शुक्रिया मुजीब आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और अब जिक्र सानेहा गडानी का। सानेहा गडानी के मजीद 3 मजदूर चल बसे हैं, जहां बाक अफराद की तादाद 26 हो गई है। हुकूमती बेहिसी के खिलाफ और इलाज मुआवजे में गफलत बरतने पर जहां बाक मजदूर के अहल खाना ने अब में शदीद एहतजाज किया। सानेहा की रिपोर्ट वजीर आला बलूचिस्तान को पेश कर दी गई। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहाज में लगी आग से झुलसकर जख्मी होने वाले मजीद 3 मजदूर दम तोड़ गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक मजदूर आलम खान गुज़िश्ता कराची के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, तहम वो घर मुंतकली के दूसरे रोज ही चल बसा। आलम खान के लवाहिकीन ने हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी पर शदीद एहतजाज करते हुए लाज गटानी पोर्ट RCD शाहरा पर रख कर उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लजबेला ने वजीर आला बलूचिस्तान को सानेहा की इब्तिदाई रिपोर्ट अरसाल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानेहा के वक्त 85 मजदूर जहाज पर काम कर रहे थे। जहाज पर तेल था जिसे साफ किए बगैर कटिंग का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाइस सानिया हुआ। रिपोर्ट में शिप ब्रेकर कंपनी गफूर एंड को के मालिक अब्दुल गफूर, मैनेजर अब्दुल हफीज, 2 ठेकेदार और मुताल्लिका महकमों के अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया है।
नाज़रीन, न्यूज़ शो में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सी पैक के मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया है। अदालत से इस्तदा ये की जाएगी कि वफाकी हुकूमत से मगरबी रूट पर वजाहत तलब की जाए। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूट पर उठने वाले एतराजात का तनाजा सियासी राहदारियों से होता हुआ अदालत तक जा रहा है। इस ज़मीन में कल स्पीकर असेंबली असद कैसर पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। रिट में अदालत से इस्तदा की जाएगी कि वफाकी हुकूमत से मगरबी रूट पर वजाहत तलब करे। इस मामले पर PTI, कौमी वतन पार्टी, ANP समेत सूबे की तमाम पार्लिमानी पार्टियों का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत मगरबी रूट पर सिर्फ सड़कें बना रही है, दीगर सहूलियात मुयसर नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत ने कई बार ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर मगरबी रूट पर इन जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में किसी सूबे के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। अदालत जाने का फैसला KPK हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। वफाकी वजीर मंसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि सी पैक के मगरबी रूट पर जोर और शोर से काम जारी है। मंसूबे में किसी सूबे के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि सी पैक पर अदालत जाने का फैसला KPK हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अदालत जाकर सूबाई हुकूमत को तसल्ली होती है तो उन्हें रोक नहीं सकते। बैरूनी सरमायाकारी अदालतों के जरिए राग़िब नहीं होती। वफाकी वजीर का कहना था कि गवादर तक कोयटा शाहराह वक्त से पहले मुकम्मल कर ली गई। राहदारी मंसूबे से पसमानदा इलाकों को ज्यादा फायदा होगा। और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना यह है कि तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात नहीं बल्कि तहरीक का नाम देती है। वजीर आजम रहें या ना रहें, पार्लियामेंट जरूर रहेगी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावेद हाशमी ने कहा कि पार्लियामेंट को तोड़ने वाली कुव्वतों को नाकाम बनाना ही बड़ा इवेंट है। जावेद हाशमी ने पेशगोई की कि ये हुकूमत भी चलेगी और पार्लियामेंट भी। ये मेरी जो पेशीन गोई है मैं आज कर रहा हूँ। बाकी ये कहते हैं जी दिसंबर तक ये हुकूमत रहेगी, ये हुकूमत भी रहेगी। जब पार्लियामेंट रहेगी तो हुकूमत भी रहेगी, आगे भी चलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है, वो फैसले करते हैं। ये पार्लियामेंट भी चलेगी, ये हुकूमतें भी चलेंगी, सरचंद आदमियों के कहने पे खत्म नहीं हो जाएंगी। जावेद हाशमी का कहना था कि सियासी जमातों की तरबियत होती है कि वो पार्लियामेंट की मजबूती के लिए कोशिश करें, लेकिन PTI की कोई तरबियत नहीं हुई। जो सियासी जमातें हैं वो किसी सूरत में उनकी एक तरबियत होती है, वो पार्लियामेंट को के वजूद के लिए कोशिशें करती हैं। तो अब भी ये जो थोड़ा बहुत मुनासिर हैं उनकी सियासी तरबियत नहीं है, वो तहरीकी है, ज्यादातर तहरीकी हैं। जावेद हाशमी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पर पूरी कौम को एतमाद करना चाहिए। अब आपको बताएं कि काफली की सेनेटर कशमाला तारिक ने फोटोग्राफी भी शुरू कर दी है। कराची में स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कोई फोटोग्राफर ना आया तो खातून सियासतदान ने खुद ही कैमरा उठा लिया और खूब तस्वीर बनाई। कराची में नेवी के स्विमिंग पूल पर शायकीन इस वक्त हैरान रह गए जब कशमाला तारिक ने नेशनल बॉयज स्विमिंग चैंपियनशिप के दौरान कैमरा उठा लिया। अपने बेटे की तो तस्वीर बनाई, साथ ही पूरे इवेंट की फोटोग्राफी भी करती नजर आई। कशमाला तारिक कहती हैं कि एक माँ की हैसियत से अपने स्विमर बेटे की सरपरस्ती के लिए वो कराची आई। जब देखा कि यहाँ कोई ऑफिशियल फोटोग्राफर नहीं तो ये जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया। हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम पंजाब से आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, हम सारी सूबों की टीमें आई हैं। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल फोटोग्राफर कोई नहीं था, ना कोई मीडिया इवेंट कवर करने आया था, वो भी फ़ोन कर करके आज बुलाया। कल से इवेंट शुरू हुआ है और नेशनल्स है।
माजी में सियासत में इन रहने वाली कशमाला तारिक का मजीद कहना था कि मुल्क में खेलों के फरोग के लिए हुकूमत और वालिदैन अपनी जिम्मेदारी अदा करें। न्यूज़ शो में आपसे दोबारा मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।